So let's start. Come on. Now in the last lecture we did graphs. Okay. Now take a new page. Acha, wait. If you're in IT, then you have a few more topics in graphs which we'll do later on. Okay. So IT students should leave 15 pages. 15 pages. Come on. Leave 15 pages. Come on. Hurry up. After graphs. Sir, 20 pages to be leave, that's for computer or IT? Between. After it is application. Form step. Okay, leave 15 pages. And come on, take a new page, dividing chapter number 6, sorting and searching. Come on. Chapter number 6, sorting and searching. Come on, Hari. Now, the name of the chapter itself tells you that in this chapter, what two things we are going to do? So we will be doing many sorting techniques and 3 searching techniques. Alright. Anyway, now we'll start with sorting today. So, give a heading. Bubble sort. The first sorting technique. Give a heading. Bubble sort. Bubble sort. Now, because this is the first program, write a question. WSCP, write a C program to demonstrate modified bubble sort. To demonstrate modified bubble sort. Underline the word modified. Underline the word modified. Look. Now, this is the first program on sorting. Okay, so we'll do the entire program over here. The void main is very simple and not so important, but still very quickly just have a look at it. Here, look. Now we'll start with hash include stdio.h. After that we'll start with the void main. Now within the void main, first of all we'll declare the array. So I'll declare something like int I, int n, and I will declare an array. Tell me what is the name of the array? Come on. X. And what is the size of the array? 20. You can keep any size, 20, 30, 40, whatever. Okay. Now I'll write a printf and I'll tell the user enter the number of elements. Enter the kya? Number of elements. Whatever number of elements the user is entering, I'll take from the user and I'll store it in variable n using a scanf. So I'll write scanf %d %n. तो printf scanf हो गया. Then I'll write one more printf और वो user को बोलेगा enter the number of enter the elements. पहले मैंने user को पूछा enter the, फिर मैं उसको पूछूंगा enter the elements. अभी समझो यूजर ने मेरे को बोला n is equal to 5. इसका मतलब उसको एरे में कितना एलिमेंट स्टोर करना है? 5. तो वो एक एक करके 5 एलिमेंट देगा. अब अगर मेरे को 5 एलिमेंट्स रीड करने का है तो मैं एक फॉर लूप लिखूंगा. सो आई राइट फॉर i equal to 0, i less than n, i plus. So if n is equal to 5, I will take values from where to where? 0 to 4. 0 to 4. Under that, I write a scanf. अभी array का डेटा टाइप int है, तो मैं लिखूंगा scanf %d ampersand x of i. तो इधर तक बोलो क्या काम हो गया? मैंने array को रीड कर लिया ना. अब मैं क्या करूंगा? एक बार मैंने array को रीड कर लिया, अब मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा ये स्टेटमेंट bubble x, n. Can you answer in 2 words? ये statement क्या है? To which function? Bubble. And what parameters you are passing? So I'm giving a call to function bubble. I'll pass the parameter x, which is the array, and the number of elements n. I function bubble क्या करेगा? Somehow
it will sort the array X, okay, and after sorting the array X, again the compiler will come back to main. So let's say before you call the function bubble, समझो array ऐसा था 3 4 1 7 2 6 5. So after the function bubble is executed, array X कैसा दिखेगा बोलो? मैं हेडिंग क्या दिया हेडिंग? हाँ अंडर चैप्टर 6 पहला हेडिंग क्या दिया है? सो बबल सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक. तुमको सॉर्टिंग का मतलब पता है ना? सॉर्टिंग का मतलब रीअरेंजिंग द एलिमेंट्स. Now the elements can be rearranged in ascending order or in descending order. If nothing is told to us, then by default the elements are arranged, sorted in ascending order. Ascending का मतलब होता है minimum to maximum और descending का क्या मतलब होता है? तो ये bubble sort क्या करेगा? ये पूरे array को rearrange करेगा from minimum to maximum. So function execute होने के बाद बोलो how the array will look like. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, बबल सॉर्ट हो गया. अभी हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो भी क्या करने का? डिस्प्ले करने का. ओके, तो मैं फिर से फॉर लूप लिखूंगा. फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. ठीक है, एंड उसके नीचे मैं स्कैनफ लिखूंगा, प्रिंटफ लिखूंगा. एंड प्रिंटफ क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा. सिंपल है. बाय द वे हम जितना भी सॉर्टिंग टेक्निक्स करेंगे उसमें पूरा जो void main है it will remain almost same. खाली void main में एक स्टेटमेंट चेंज होते रहेगा. बोलो कौन सा? फंक्शन कॉल. ओके, बस बाकी पूरा सेम रहेगा. इसके ऊपर इनपुट होगा, इसके नीचे आउटपुट होगा. ठीक है, अब ये मेन हम लिखेंगे नहीं, उधर लिख दो रेफर ऐप फॉर मेन. रेफर ऐप फॉर मेन. ऐप में तुमको पूरा प्रोग्राम दिखेगा, एवरीथिंग. लिखा? अच्छा, अब अपने को कौन सा फंक्शन लिखना है? बबल ना. सो दिस इज द फंक्शन बबल व्हिच विल फर्स्ट कॉपी. व्हेन यू कॉपिंग फंक्शन बबल यू विल यूज द सेम कलर्स. ओके, जो ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा, जो रेड है वो रेड ही रहेगा. ठीक है, कम ऑन, स्टार्ट कॉपिंग एंड पे अटेंशन व्हाइल कॉपिंग. स्टार्ट. अरे फास्ट. Come on, hurry. Be fast.
नाउ ये हो गया ना, ठीक। अभी एक क्वेश्चन लिखो, शो द वर्किंग ऑफ modified bubble sort for ये देखो 3, 4, 1, 7, 2, 6, 5 कॉमा का पार्ट आगे लिखो 3, 4, 1, 7, 2, 6, 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुमको क्या दिखाने के लिए बोल रहा है? वर्किंग ना। सुनो, अभी एग्जाम में अगर वर्किंग आया हाँ, तो ये फंक्शन भी तुमको देना है। अगर तुमने समझो सिर्फ वर्किंग दिया, ये फंक्शन नहीं दिया, तो यू विल गेट हाफ ऑफ द मार्क्स। समझा? ऑलराइट, तो अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है, स्ट्रेट अवे कितना मार्क्स चला जाएगा? 4 तो ऐसे ही चला जाएगा। समझा? तो मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तो पहले एक नोट लिखो। In exam, first give function bubble, and then the following. सुनो, अभी आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट क्यों तुमको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो, बी अटेंटिव। सुनो, अभी आज के लेक्चर में ना सबसे इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस का वर्किंग सीखना। क्या है ना, इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई विल गिव यू सम ट्रिक्स, आई विल गिव यू सम टेक्निक्स। उसकी वजह से पता है क्या होगा, तुम्हारा फ्रेंड जो ये वर्किंग आधे घंटे में करेगा, तुम ये सेम वर्किंग 5 मिनट में खत्म करोगे। So I'm going to give you some tricks, some techniques to do this working very quickly, very fast. ये आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? अभी हर सॉर्टिंग टेक्निक के लिए ना मैं एक गोल्डन रूल डिक्टेट करूंगा, जो तुम ऊपर और पेज पे लिखोगे, ठीक है? तो या तो उसी पेज पे या नेक्स्ट पेज पे ऊपर लिखो। कम ऑन, ऊपर लिखते हैं ना हम गोल्डन रूल, वहां लिखो। लिखो, while going through the array, compare the adjacent elements and do swapping if required. लो, अब इसका क्या मतलब है, सुनो। Now look, now this is the array 3, 4, 1, 7, 2, 6, 5। हाँ, अभी देखो इसका वर्किंग कितना सिंपल है। All you need to do is you need to go through the array and do swapping if required. ठीक है? So now let me go through the array once. Okay? So now I'm going through the array. All right. Now when I'm going through the array, I'll compare adjacent elements, adjacent and neighboring elements. So compare 3 and 4. Is 3 greater than 4? False. कुछ मत करो, 3 इधर रहेगा, 4 इधर ही रहेगा. Is 4 greater than 1? जल्दी जल्दी क्या करेगा? तो 1 इधर आया, 4 इधर आया. Is 4 greater than 7? कुछ मत करो, 4 भी इधर, 7 भी इधर. Is 7 greater than 2? क्या करने का? तो 2 इधर आया, 7 इधर आया. Is 7 greater than 6? तो क्या करो? Swapping. 6 इधर आया, 7 आगे आया. Is 7 greater than 5? क्या करो? तो 5 इधर आया, 7 इधर आया. Now एक simple question का आंसर दो. How many times have you gone through the array? तो इसको मैं बोलूंगा this is one pass of bubble sort. One क्या? That means I have passed through the array once. And after pass one, look at the last element. Who is the last element?
What is so special about it? It is sorted. So we have started sorting from behind. ये समझा? ठीक है. Now do second pass. तो वही गोल्डन रूल फॉलो करने का. Go through the array, compare elements and do swapping it. Come on, थोड़ा स्पीड पकड़ो. Is 3 greater than 1? True. Either 1, either 3. Is 3 greater than 4? False. Either 3, either 4. Is 4 greater than 2? True. Either 2, either 4. Is 4 greater than 6? False. Either 4, either 6. Is 6 greater than 5? True. Either 5, either 6. Is 6 greater than 7? False. क्या बोला तुमने? False. देखो मैंने तुमको पूछा is 6 greater than 7 और तुमने false बोला ना? In reality, I will not even compare 6 with 7. बोलो क्यों? 7 पहले से sorted है. 7 is resting in peace. उसको disturb क्यों करना है? समझा? All right. तो sorting उसके पहले रुक जाएगा. Anyway, कितना पास हो गया? 2. अभी एक और पास. ठीक है? चलो फिर से. Is 1 greater than 3? False. कुछ मत करो. Either 1, either 3. Is 3 greater than 2? True ना? So swapping either 2, either 3. Is 3 greater than 4? False. कुछ मत करो. Is 4 greater than 5? False. कुछ मत करो. Is 5 greater than 6? False. Very good. I will not even compare 5 with 6. क्यों? हाँ, अभी थोड़ा array को ध्यान से देखो. Is it already sorted? Yes. Yes ना? कितना पास हो गया? 3. तुम क्या करो ना, एक और पास ऐसे ही लिख दो. तो फोर्थ पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड दैट कंप्लीट्स योर बबल सॉर्ट. ये क्यों लिखने का बताऊंगा. इतना समझा तुमको? इफ यू आर पेइंग लिटिल अटेंशन ना, तो तुमने रियलाइज किया रहेगा मैंने फंक्शन की तरफ देखा ही नहीं. मैंने तुमको कुछ बोला ही नहीं. फ्लैग क्या है, आई क्या है, जे क्या है, ये क्या है, वो क्या है. और तुमको भी एग्जाम में यही करने का है. एग्जाम में क्या करो, ये फंक्शन है ना लर्न करके लिख दो. बाय द वे ये जो चैप्टर है ना सॉर्टिंग सर्चिंग, इसमें सब तुमको लर्न करना पड़ेगा. नॉर्मली सी लिंक्ड लिस्ट एंड ट्रीज आई डोंट टेल यू टू लर्न. मैं उल्टा बोलता हूं डोंट लर्न. बट जब तुमको लर्न करना पड़ेगा, तुमको एज इट इज लिखना पड़ेगा. बट जब तुम वर्किंग करोगे ना, तो इसकी तरफ देखो भी मत. अपना ट्रिक्स यूज करो और वर्किंग करो. तो जो इतना मैंने वर्किंग किया ना, इतना दैट यू विल राइट बिटवीन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन. So did you understand इतना वर्किंग कैसे करने का? क्या आया ना? पक्का? ठीक है. So you understood कि ये वर्किंग कैसे करने का. All right. अभी अपने को एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि हाँ मैंने ये सब देख के वर्किंग किया है. तो what I will do is now I will teach you working with respect to this code. और तुम अभी खुद ही रियलाइज करोगे कि देखो when you do the working with the help of this code कितना ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है. एंड लास्ट में मैं तुमको ये भी ट्रिक बताऊंगा कि आई एंड जे का वैल्यूज कैसे लिखने का विदाउट लुकिंग एट द कोड. ठीक है. दैट आल्सो आई विल टेल. इतना समझा? ऑलराइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग. ओके. दिस इज 3 4. क्वेश्चन लिखा है ना तुमने? फिर एक बार बोलो एरे क्या है. 3 4 1 7 2 6 5. 3 4 1 7 2 6 5. So that is the array. All right. और ये पोजीशन नंबर्स, ये पोजीशन नंबर 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है. Now let's start the working by looking the code and तुम realize करोगे देखो कोड को देख देख के वर्किंग करना कितना डिफिकल्ट होता है. ऑलराइट. अभी इधर जो ब्लू कलर में है ना, वो ब्लू कलर में क्यों है वो तुमको थोड़ी देर के बाद समझेगा. Now let's start. जैसे तुम फंक्शन स्टार्ट करते हो तुम फ्लैग को क्या वैल्यू देते हो? If flag is 1 तो उसका मतलब I am assuming that the array is not sorted.
If flag is 1, I am assuming that the array is, तो मैं इधर लिख के रखता हूँ flag is 1, I am assuming that the array is not sorted. ठीक है? अच्छा, now एक for loop चालू होता है. बोलो how many statements are there under this for loop? For I loop? How many? Come on. 2. पहला flag equal to 0. दूसरा for j. ठीक है? All right. अच्छा, अभी इधर ये जो for I loop है ना, one execution of for I loop is one pass. One execution of for I loop is one pass. ठीक है? Now just read the black color in this for I loop. For बोलो क्या? I equals to 0, I less than n minus 1, I plus plus. अभी इधर देखो, अपने array में ना n का वैल्यू 7 है. There are 7 elements in my array. तो n minus 1 यानी कितना? तो मैं ना straight away इधर 6 लिख देता हूँ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. 6. ठीक है? All right. Similarly, इसको रीड करो for. बोलो क्या? J equals to 0, J less than n minus 1 minus I. तो ये हो गया j less than, हाँ बोलो क्या? 6 minus I. ठीक है? Now simple question. अगर ये ब्लू कलर नहीं है, समझो ये ब्लू कलर नहीं है, हाँ? तो ये for I loop में I will take values from where to where? 0 to 5 is how many values? 6 values. And how many elements are there in the array? तो अब एक बात ध्यान से सुनो. मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनो. मैंने बोला one execution of for I loop is 1. And the for I loop will take maximum 6 values. तो इसका मतलब क्या है पता है? ये जो bubble sort है ना, इसमें the maximum number of passes will be 6. The क्या बोला मैंने? Maximum number of passes will be 6. हाँ, but वो maximum, हाँ, sorry 6 मैंने गलत बोला. यानी गलत नहीं, मेरे को 6 के बदले ऐसा बोलना चाहिए. The maximum number of passes will be n minus 1. Whatever that n minus 1 is. तो अपने केस में n क्या है? तो n minus 1. बट वो मैक्सिमम है, उससे कम भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल इधर जो एग्जांपल था उसमें कितना पास हुआ था? 4. ठीक है? वो जो ब्लू कलर है ना, वो बीच में रोक सकता है पासेस को ऐसा. ऑलराइट, तो याद रखना बबल सॉर्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस हाउ मच? n minus 1. ठीक है? अभी स्टार्ट करते हैं. चलो I का पहला वैल्यू बोलो 0. तो मैं इधर लिखता हूं I equal to 0. अभी is 0 less than 6? True. Is flag equal to 1? True. तो true and true हुआ ना, तो मैं अंदर आया. जैसे ही मैं अंदर आया मैंने फ्लैग को क्या वैल्यू दिया? 0. अभी ना तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने ब्लू कलर क्यों लिखा, वो तुमको एंड में समझेगा क्यों लिखा. तो अभी खाली तुम वर्किंग पे ध्यान दो. तो जैसे ही मैं अंदर आया ना, मैंने फ्लैग को 0 दिया. In other words, I will say this way कि in the beginning of pass 1, in the beginning of every pass, I am making flag equal to 0. If flag is 0, I am assuming that the array is sorted. ऐसा. ठीक है? तो in the beginning of every pass, I am assuming that the array is sorted. अब मैं j लूप चालू करूंगा. For j equal to 0, j less than 6 minus I, j plus plus. बोलो I का वैल्यू क्या है? 0. जल्दी. 0. तो 6 minus 0 क्या? 6. तो ये ऐसा हो गया ना. For j equal to 0, j less than 5. 6, j plus plus. तो बोलो j will take values from where to where? 0 to 5. हाँ? 0 to 5. हाँ, तो मैं इधर लिख के रखता हूँ 0 to 5. ठीक है? अब मैं ये कंडीशन बार बार चेक नहीं करूंगा, हाँ, बिकॉज दैट विल डिस्टर्ब आवर फ्लो. अभी जब j का वैल्यू 0 है, ये देखो, जब j का वैल्यू 0 है तो तुम नीचे आओगे if पे. अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये रेड कंडीशन है जो एक्चुअल काम करता है. इसको रीड करो. if क्या? अब इसको रीड करो बाय सब्स्टिट्यूटिंग j and j plus 1. if तो थोड़ा ध्यान दोगे ना तो रियलाइज करोगे द रेड कंडीशन इज कंपेयरिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स. व्हाट इट इज कंपेयरिंग? हाँ, जो तुमने गोल्डन रूल लिखा था. अच्छा, एनीवे अब इधर देखो. इज x of 0 greater than x of 1? जल्दी जल्दी. फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा?
नाउ थिंक नॉर्मली, बोलो अभी कंपाइलर किधर जाएगा? J प्लस प्लस, बिकॉज द इफ इज अंडर द फॉर j। बोलो अभी J क्या वैल्यू लेगा? अरे सब तुम्हारे ऐप के सामने है। J क्या वैल्यू लेगा? जब J वैल्यू लेगा 1, वो रेड कंडीशन रीड करो, इफ क्या ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 1, बराबर। तो ट्रू, तो अभी अंदर आओगे ना तुम। बोलो ये पहला 3 स्टेटमेंट क्या काम करेगा? तो बोलो कौन कौन स्वैप होगा? क्या क्या? तो इधर कौन आया? इधर कौन आया? 4 3 7 2 6 5, वो ऐसे ही रहा, बराबर। चलो थोड़ा वेट, एक बात भूल गया। अभी ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ ना, और उसका लास्ट स्टेटमेंट क्या है? रीड करो जोर से। तो देखो क्या हुआ, जो फ्लैग 0 था ना, वो फ्लैग को मैंने वैल्यू दे दिया 1, बराबर। अगर मैंने फ्लैग को 1 दिया ना, तो 1 इज एन इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि स्वैपिंग हुआ है। क्या हुआ है? क्योंकि देखो स्वैपिंग के बाद हो रहा है वो। तो अगर स्वैपिंग हुआ है तो इसका मतलब अभी तक एरे शायद सॉर्टेड नहीं है, ऐसा एक्चुअली वो इंडिकेट कर रहा है। अगर स्वैपिंग हुआ है तो अभी तक एरे शायद सॉर्टेड नहीं है, ऐसा ये इसका मतलब है। ये समझा? ठीक है, एनीवे चलो थोड़ा स्पीड पकड़ो। अभी कंपाइलर कहां जाएगा? J will take the value 2. Now when J is 2, is x of greater than x of 3. Who is x of 2? 4. Who is x of 3? 7. Is 4 greater than 7? False. Compiler goes to J takes the value 3. Is x of 3 greater than x of 4? True. क्या होगा? Swapping. तो इधर 2 आया और आगे गया 7, एंड स्वैपिंग के बाद फ्लैग को क्या वैल्यू मिलेगा? Anyway 1 ही है। Compiler goes to J plus plus. J takes what value? 4. When J takes the value 4, is x of 4 greater than x of 5. True or false? True. True. तो स्वैपिंग होगा। बोलो इधर कौन आया? 6. आगे कौन गया? 7. तो इधर 6 and इधर 7. All right. Compiler goes to J plus plus. J takes the value 5. By the way, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है हर बार, बट फ्लैग अभी 1 ही है, तो इसलिए उस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो J takes the value 5, ओके, is बोलो क्या? ट्रू। क्या होगा? स्वैपिंग के बाद बोलो इधर कौन आया? लास्ट स्टेटमेंट को लास्ट कौन हो गया? तो इधर 5 आया, इधर 7 हो गया, बराबर। ठीक है। Compiler goes to J plus plus. Now J will take the value 6. So this condition will become false. Compiler goes to ठीक है। Let's wait here for a minute and let's understand क्या हुआ। All this time बोलो what was the value of I? 0. And J took values from where to where? 0 to 5. एक simple question का आंसर तो J took how many values? 6 ना? तो you know what we did? J ने 6 वैल्यू लिया ना, तो we did 6 comparisons of adjacent elements. क्या we did क्या? 6 comparisons of adjacent elements. First we compared x of 0 and x of 1. Then x of 1, x of 2, x of 2, x of 3, x of 3, x of 4, x of 4, x of 5, x of 5, x of 6. And जहां required था हमने swapping किया, और ऐसा करते करते देखो the last element is sorted. समझ में आ रहा है? ठीक है, बस अभी एक और चीज समझना है, बाद में तो इट इज वेरी सिंपल। नाउ कंपाइलर गोस टू I plus plus. Now I takes the value 1. Now when I is 1 less than 6. True. And is flag equal to 1. True ना? तो फिर से तुम अंदर आओ, तो सेकंड पास चालू हुआ। जैसे ही सेकंड पास चालू होता है तुम फ्लैग को क्या करते हो? हाँ, रीजन समझेगा क्यों। ठीक है, तो तुमने फ्लैग को किया 0, फ्लैग को किया 0। ऑलराइट, अभी फिर से ये लूप चालू होगा। अभी ध्यान देना, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 6 माइनस i का वैल्यू क्या है? 1। तो 6 माइनस 1 यानी कितना? 5। तो j लेस देन 5 यानी j विल टेक वैल्यू फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 to 4। इसका मतलब j एक वैल्यू कम ले रहा है ना? क्यों? समझ